Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture, we will going to start our second chapter of subject principle of digital electronics. Okay, so chapter name is logic gates. Okay, this is second chapter. Okay, we will finish this chapter in one video only. Okay, one video lectures. Okay, so let's start the chapter. So first of all, chapter name is logic gates. Okay, so first, what is mean by logic gates? Okay, this chapter is very short and simple chapter. Okay, like that something 15 to 20 minutes chapter. Okay, only. So what is meant by logic gates? So logic gates are fundamental building blocks in digital circuits. Okay, they perform basic. Wait, I will maximize it. Okay, they perform basic logical function. They are essential for the computational task. Okay, logic gates are essential for computational task like computing, etc. Okay, logic gates are categorized into basic gates and derived gates. Okay, so logic gates are categorized into two types, that is basic gates and derived gates. Okay, so let's see first basic logic gates. Okay, which are basic logic gates? Okay, basic logic gates. Okay, so wait. Hmm. Okay, these are fundamental gates used in digital electronics. Okay, so basic logic gates are fundamental gates that use in digital electronics. So first one is AND gate. Okay, this is symbol for AND gate. Okay, observe these symbols. A and B are input and output is A into B. Okay, so what is the function of AND gate? Output is very high. High means 1. Okay, only when all inputs are high. Okay, when all inputs are high, then the output is high. Okay, this is function of AND gate. Then this is truth table for AND gate. Okay, so these are 3 bits A B C. Okay, this is input column and Y is equals to, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, A इंटू बी. ओके, सो A इंटू बी इंटू सी. यहाँ पे C क्यों लिया? क्योंकि 3 बिट लिए A B C, सो A इंटू बी इंटू सी. सो दिस इज ट्रुथ टेबल. ऑब्जर्व दिस ट्रुथ टेबल. फर्स्ट डिस्कस फंक्शन. ओके, फंक्शन क्या कहता है? आउटपुट हाई कब होगा? ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई. जब सारे इनपुट हाई होंगे, यानी कि सारे इनपुट 1 होंगे, तभी आउटपुट 1 आएगा. तो आप अगर ट्रुथ टेबल ऑब्जर्व करोगे तो सारे के सारे इनपुट यहाँ पे 1 है लास्ट में, तो आउटपुट क्या आया? 1. और बाकी के सारे 0 है आउटपुट. ओके, सो आप ट्रुथ टेबल ऐसा भी लिख सकते हो. 3 बिट का 4 लिख लो. 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 1. ओके, 2 टाइम्स 0, 2 टाइम्स 1, 2 times 0, 2 times 1. Okay, 0 1 0 1 0 1 0 1, like that. Okay, so second gate is OR gate. Okay, so symbol for OR gate is this is. Okay, and the equation is A plus B. Okay, this is Boolean equation, students. Okay friends. Okay, A into B into C, this is Boolean equation for AND gate. Okay, so this is Boolean equation for OR gate. Okay, then let's see function. Output high. Okay, 1 when at least one input is high. Okay, when at least one input is high, then the output is 1. Okay, means at least one bit 1 होना चाहिए, उसके बाद आउटपुट आपका 1 आ जाएगा. तो यहाँ पे अगर देखोगे, दिस इज बुलियन इक्वेशन. ओके, इक्वेशन फॉर ऑर गेट. सो अगर आप देखोगे यहाँ पे सारे जीरो है, तो आउटपुट क्या हुआ? 0. यहाँ पे 0 0 1 है, तो आउटपुट आया 1. क्यों? क्योंकि एटलीस्ट एक बिट 1 होना चाहिए, तो आउटपुट 1 आ जाएगा. तो यहाँ पे सारे इसमें एक एक बिट 1 है. यहाँ पे 2 बिट 1 है, यहाँ पे 1 बिट 1 है, यहाँ पे फिर से 2 बिट 1 है, यहाँ पे 2 बिट 1 है, और यहाँ पे 3 बिट 1 है. तो सारे के सारे आउटपुट 1 आ गए. सिर्फ यहाँ पे सारे जीरो, इसलिए आउटपुट 0 आया, क्योंकि हमें एटलीस्ट 1 बिट 1 होना चाहिए. ओके, सो दिस इज ऑर गेट. देन नॉट गेट. ओके, सो नॉट गेट क्या कहता है? ओके, नॉट गेट यहाँ पे गलत हुआ है, लिखते रहे NOT नॉट गेट. ओके, लाइक दैट, NOT नॉट गेट. दिस इज सिंबल फॉर नॉट गेट. ओके, A इनपुट एंड A इनवर्स इज आउटपुट, यानी कि उल्टा, आउटपुट इनवर्स ऑफ इनपुट. ओके, फंक्शन इनपुट में देखो 0 1 1 0. ओके, दिस इज ट्रुथ टेबल फॉर OR गेट. ओके,
Then second term, second type is derived logic gates. Okay, so what are derived logic gates? So derived gates are combinations of variations of basic gates. Okay, derived gates are nothing but the combinations of basic gates. Okay, so first one is NAND gate. Okay, so let's see NAND gate. Okay, this is symbol for NAND gates. आप यहाँ पे symbol लिख सकते हो. सेम है AND के जैसा, लेकिन यहाँ पे बबल बनाया गया है. ओके, और सो ए बी इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आएगा, ए इंटू बी और ऊपर बार, यहाँ पे बार है. ओके, इनवर्स लाइक दैट. ओके, देन फंक्शन ऑफ नैंड गेट इज आउटपुट लो. आउटपुट कब जीरो होगा, ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई. ओके, यानी दिस इज अपोजिट ऑफ एंड गेट. एंड गेट से उल्टा है, अपोजिट है. ओके, जब सारे इनपुट हाई होंगे तब आउटपुट वन आता है, किसमें, एंड गेट में. सो नैंड गेट में क्या आएगा, जब सारे इनपुट हाई होंगे तो आउटपुट जीरो आएगा. सो अगर आप ट्रुथ टेबल देखोगे, ओके, दिस इज बुलियन इक्वेशन. अगर आप ट्रुथ टेबल देखोगे तो सारे जीरो है और यहाँ पे वन है. सो हमने क्या फंक्शन में क्या पढ़ा, आउटपुट कब जीरो आएगा, सारे इनपुट हाई होंगे. तो लास्ट में सारे इनपुट हाई है, यानी कि सारे इनपुट वन है, तो आउटपुट आया जीरो. ओके, बाकी सब जगह पे सारे इनपुट हाई नहीं है, कुछ कुछ जगह पे जीरो तो है, एटलीस्ट वन बिट तो जीरो है, इसलिए आउटपुट वन ही आएगा. ओके, देन सेकंड टाइप इज नॉर गेट. सो दिस इज सिंबल ऑफ नॉर गेट. ओके, ए बी है, दिस इज अपोजिट ऑफ और गेट. ओके, सो हम ए प्लस बी करते और में, यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी इनवर्स. ओके, फंक्शन आउटपुट हाई ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो. जब सारे इनपुट लो हो तब आपका आउटपुट कैसा आएगा, हाई आउटपुट आएगा. ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे आउटपुट कब हाई आता है, सारे इनपुट्स लो, तो यहाँ पे सारे के सारे जीरो है तो आउटपुट क्या आया, वन. ओके, देन यहाँ पे जीरो जीरो वन है तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो. ओके, क्योंकि आउटपुट लो रहना चाहिए वन बिट आने के, वन आंसर आने के लिए. ओके, वन आउटपुट आने के लिए. ओके, लाइक दैट. दिस इज ट्रुथ टेबल फॉर नॉर गेट. देन थर्ड इज एक्स और गेट. ओके, एक्स और गेट. वेट स्टूडेंट, वेट फॉर अ मिनट. ओके, so XOR gate, this is symbol of XOR gate. Okay, this is symbol of XOR gate. Okay, ये आपका सिंबल, ए बी इनपुट दिया गया है एंड ए प्लस बी आउटपुट आ रहा है. ओके, आउटपुट हाई. आउटपुट कब हाई होगा, व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट. जब सारे इनपुट्स डिफरेंट हो तो अब आपका आउटपुट हाई होगा. ओके, दिस इज बुलियन इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. ओके, ए बी सी, आउटपुट क्या आना चाहिए, हाई आना चाहिए. ओके, आउटपुट हाई व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट. इनपुट डिफरेंट होना चाहिए तभी आउटपुट हाई आएगा. तो यहाँ पे सारे इनपुट सेम है तो आउटपुट हाई नहीं आ सकते, इसलिए जीरो. तो यहाँ पे इनपुट डिफरेंट है तो आउटपुट हाई आया. यहाँ पे भी इनपुट डिफरेंट है, 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 तो आउटपुट क्या आए, सारे के सारे वन, मतलब हाई. एंड यहाँ पे इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या आना चाहिए, जीरो. ओके, सो last one is, fourth one is XNOR gate. Okay, XNOR, yeah, XNOR gate. So this is symbol for XNOR gate. Function is output high when input are same. जब इनपुट सेम हो तभी आउटपुट आपका हाई आ सकता है. दिस इज ट्रुथ टेबल एंड दिस इज बुलियन इक्वेशन फॉर XNOR gate. ओके, ए प्लस बी प्लस सी बार. ओके, सो सारे इनपुट सेम होने चाहिए, जीरो 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 एंड वन वन वन, तो आउटपुट क्या आया, वन. ओके, और बाकी सब जीरो, क्योंकि आउटपुट सेम नहीं है, इनमें इनपुट सेम नहीं है. इनपुट सेम नहीं इसलिए आउटपुट जीरो आएगा. ओके, देन लास्ट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल गेट. सो व्हाट इज मीन, हमने डेराइव गेट्स देखे, बेसिक गेट्स देखे, अभी यूनिवर्सल गेट क्या है. सो कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल गेट इज revolve around the ability of certain logic gates to replicate. So universal gate क्या है, revolve around the ability of certain logic gates to replicate the function of all other basic logic gates. Okay, so and universal gate can independently implement any logic. Okay, universal gate कौन सा भी एक लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, मतलब वो खुद से कोई भी लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकता है, लॉजिक सर्किट, मेकिंग इट अ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर डिजिटल सिस्टम. वो खुद से फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक बनाने के लिए कोई भी लॉजिक अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर सकता है. कौन, यूनिवर्सल गेट. ओके, द नैंड एंड नॉर, हमने नैंड एंड नॉर देखे. देखो
गेट्स आर कंसिडर यूनिवर्सल गेट्स। ओके, नैंड एंड नॉर क्या है, यूनिवर्सल गेट्स है। ओके, सो अभी सवाल क्या आता है, व्हाई आर नैंड एंड नॉर आर यूनिवर्सल गेट्स? नैंड और नॉर ही क्यों यूनिवर्सल गेट्स? एंड और एक्स नॉर ये क्यों नहीं यूनिवर्सल गेट्स? सिर्फ नैंड और नॉर क्यों? तो देखते, फर्स्ट वन इज एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस बेसिक लॉजिक गेट्स। तो यूनिवर्सल गेट्स नैंड और नॉर गेट में, जो जिसे हम यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं, उनमें एबिलिटी है टू रिप्रोड्यूस बेसिक लॉजिक गेट्स, वो बेसिक लॉजिक गेट्स रिप्रोड्यूस कर सकते with appropriate combinations. Both NAND and NOR gates can create the three fundamental gates. Okay, NAND and NOR gates थ्री फंडामेंटल गेट्स यानी कि बेसिक गेट्स डिराइव कर सकते हैं। ओके, एंड और एंड नॉट। ओके, then second one is efficiency. Efficiency, NAND and NOR gates are generally faster. So इसलिए उन्हें यूनिवर्सल गेट की थी क्योंकि वो फास्टर से, एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव भी है यानी कि कॉस्ट उनकी कॉस्ट कम है कंपेयर टू अदर गेट्स। ओके, इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड पावर कंजम्पशन, वो पावर भी कम लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी इजी है और कॉस्ट भी उनकी कम है और जनरली फास्टर से मोर देन अदर गेट्स। ओके, so these are points why are NAND and NOR gates are called universal gates. Okay, so I hope that आपको universal gates समझ में आए होंगे and basic and derived gates भी समझ में आएंगे। So let's see syllabus of second chapter. अगर आप syllabus की तरफ बढ़े तो wait, I will show you the syllabus of second chapter. अगर आपने syllabus देखा तो यहाँ पे देखो, डिजिटल, so let's see डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर आपने न्यू सिलेबस देखा तो उसमें नंबर सिस्टम एंड डिजिटल कोड्स हमने ऑलरेडी फिनिश कर दिया है। ओके, चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी फिनिश कर दिया। हम लॉजिक गेट्स देख रहे थे, तो आपको लॉजिक गेट्स में सिलेबस में क्या क्या दिया गया है यहाँ पे ऑब्जर्व करो आप। लॉजिक गेट्स में आपको क्या क्या दिया गया है, लॉजिक गेट्स। ओके, लॉजिक गेट्स क्या है हमने देखा, उनकी डेफिनेशन देखी, बेसिक एंड डिराइव गेट्स देखे हमने सबसे पहले। ओके, देन उनके सिंबल देखे, मैंने आपको सिंबल बताया बेसिक एंड डिराइव गेट्स में कौन कौन से गेट्स आते हैं और उनके सिंबल देखे। बुलियन इक्वेशन से भी बताया, y इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, y इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, y इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इनवर्स। ओके, एंड ट्रुथ टेबल, बुलियन इक्वेशन के साथ साथ मैंने आपको क्या बताया, ट्रुथ टेबल भी बताया। सो इतना हुआ, एंड द लास्ट वन इज कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल गेट्स। ओके, सो इतना ही आपके सिलेबस में दिया गया है, तो मैंने सारा टॉपिक आपको कवर कर दिया है। ओके, इस चैप्टर में इतना ही था। एक बार फिर से आपको रिवाइज करता हूँ क्या क्या हमने पढ़ा और चैप्टर में क्या क्या है, ताकि आपको क्लैरिटी हो सके कि हमें सिलेबस में क्या दिया है और हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले लॉजिक गेट्स, आओ इस पीडीएफ की तरफ, नोट्स की तरफ आओ। सो लॉजिक गेट्स देखा, दीज आर लॉजिक गेट्स। ओके, लॉजिक गेट्स के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। देन आगे देखो, सिलेबस में देखो बेसिक एंड डिराइव। सो लॉजिक गेट्स के टाइप यहाँ पे देखो, बेसिक, मुझे इसे इरेज करना पड़ेगा। ओके, बेसिक गेट्स मैंने बताए, बेसिक लॉजिक गेट्स, एंड और एंड नॉट। देन डिराइव्ड, डिराइव्ड लॉजिक गेट्स। ओके, अगेन आओ, उसमें सिंबल देखा, बुलियन इक्वेशन एंड ट्रुथ टेबल। सो आओ बेसिक गेट्स में देखो, बेसिक गेट्स में हर एक गेट का मैंने आपको यहाँ पे सिंबल दिया गया है, सिंबल दिए गए, उसका बुलियन इक्वेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड दिस इज ट्रुथ टेबल। ओके, अगेन और गेट देखो, यहाँ पे सिंबल सिंबल है, देन यहाँ पे बुलियन इक्वेशन है, ये देखो, एंड दिस इज ट्रुथ टेबल। अगेन नॉट गेट में आओ, दिस इज सिंबल। ओके, दिस इज सिंबल, ट्रुथ टेबल एंड बुलियन इक्वेशन y is equals to a inverse. ओके, डिराइव गेट्स में भी सेम सिंबल, ट्रुथ टेबल एंड बुलियन इक्वेशंस यहाँ पे। अगेन नीचे भी सिंबल, बुलियन इक्वेशन एंड ट्रुथ टेबल, सारा का सारा देखा। एंड देन लास्ट वन इज कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल गेट्स। ओके, सो लास्ट में हमने यहाँ पे पढ़ा दिस इज कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल गेट्स। ओके, सो दिस इज एंड ऑफ चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दिस इज लॉजिक फैमिलीज। ओके, लॉजिक फैमिलीज हम नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर खत्म कर देंगे, एक ही लेक्चर में इसे भी हम खत्म करेंगे। ओके, सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। This note is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box.
If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. Okay, if you have any doubt, please ask in comment section or DM me on Instagram. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.